Hello guys, myself Chirag. In this video we will talk about inter-symbol interference. This is a major topic in communication systems, and also we will talk about the working of baseband communication receiver. From this video we can know what is ISI, if it is a problem then how we can resolve it and how it can be measured. So here we start. So inter-symbol interference is a part of it is also called ISI. This is not ISI of Pakistan. It is called inter-symbol interference. It occurs only in baseband transmission. ये सिर्फ wired baseband transmission में ही occur होगा. Pulse, because in baseband transmission pulses are transmitted. You know that there are two type of communications, baseband and passband. In baseband pulses are transmitted, and in passband communication or wireless communication pulses are modulated and then transferred. So we are talking about only baseband transmission. So pulses are transmitted in baseband transmission. Channel introduces a spread of pulse in time domain. This is called dispersion. For example, let transmitted pulse is 101. Let we are using rectangle pulse. This is a first assumption. We are using rectangle pulse to transmit a digital signal. These are TS are called sampling instead, or it is also called bit interval. If it is passed through a wired channel, then received pulse will not be a rectangle pulse. There will be a dispersion. Dispersion is spreading of pulse in time domain. So one is received as this spread pulse, and 0 for 0 there is no pulse, and for next one spread pulse is spreaded. Now problem is that first you must remember this is happening in time domain, not in frequency domain. So this is a confusing point. You must know interference. These are called interference. So interference is called ISI, inter-symbol interference. So what is it? So why it is happening? Because there is a dispersion of pulse in time domain. So spread of pulse in time domain is called. Now we will talk about the baseband type of receiver. In this type of receiver, the received signal is YT, and baseband receiver converts this signal to 10110 type of this is digital signal. So what is our aim? Our aim is to convert pulse, electrical pulse signal to a digital signal. This is our aim. So at receiver side, first block is optimum filter. ये optimal filter generally हम use लेते हैं match filter को. In other video we will talk about match filter. This is first part, and in second part we sample the continuous signal at interval of TS. TS है होगा यहाँ पर sampling time. आपको पता है आफ्टर सैम्पलिंग सिग्नल बिकम्स डिस्क्रीट सिग्नल. अभी डिस्क्रीट सिग्नल, अभी डिजिटल नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे इसे वन वी टेक डिसीजन डिवाइस, वी कंपेयर द इनकमिंग डिस्क्रीट सिग्नल टू ए थ्रेशोल्ड वैल्यू. जनरली थ्रेशोल्ड वैल्यू हम मिडिल में लेते हैं जनरली. देन आफ्टर डिसीजन डिवाइस, इफ y इज ग्रेटर देन लैम्ब्डा तो हम इसे बोलेंगे 1, लॉजिक 1. इफ y इज लेस देन लैम्ब्डा तो हम इसे बोलेंगे लॉजिक 0. सो दिस इज अ डिसीजन डिवाइस.
तो आफ्टर डिसीजन डिवाइस वी विल गेट डिजिटल सिग्नल. सो दिस इज ए बेसबैंड रिसीवर. अब हम बात करते हैं हाउ टू रिजॉल्व ISI. देखिए ये हमारे पास YT है, रिसीव्ड सिग्नल. अभी हमें इसे सैंपल करना है TS टाइम पर, 2TS टाइम पर और 3TS टाइम पर, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल सिग्नल, 1010 टाइप ऑफ सिग्नल. अब यू नो दैट कि ये पल्स हमें ट्रांसमिट क्या किया था, हमने ट्रांसमिट किया था 101 को हमने ट्रांसमिट किया था. अब हम देखते हैं कि क्या आंसर आएगा हमारे पास. तो जब हमने TS पर इसे सैंपल किया तो ये पॉइंट आया, और जब 2TS पर सैंपल किया तो हमने ये पॉइंट आया, और 3TS पर ये पॉइंट आया. सो दीज आर सैंपल्ड सिग्नल. सैंपल्ड सिग्नल इज ऑल्सो कॉल्ड YNTS. इट इज YT एंड इट इज YNTS. अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम पास करेंगे डिसीजन डिवाइस से. डिसीजन डिवाइस कंपेयर करेगा डिस्क्रीट सिग्नल को थ्रेशोल्ड वैल्यू से. लेट्स अज्यूम थ्रेशोल्ड वैल्यू इज इन मिडिल. तो आउटपुट क्या आएगा, 110, बिकॉज यहां पर ये आउटपुट थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है तो आउटपुट आया 1. यहां पर y इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू तो आउटपुट आया 1. यहां भी y इज ग्रेटर देन लैम्बडा तो आउटपुट आया 1. तो अब देखिए दिस इज अ प्रॉब्लम. दिस इमोजी इज सैड. व्हाई इट इज सैड, बिकॉज हमने ट्रांसमिट किया था 101 एंड वी आर रिसीविंग 101. सो एरर कहाँ पे है, ये एरर है. इस टाइप को हम एरर को बोलते हैं ISI, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस. तो समझ आ गया होगा आपको क्या है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस. जब हम पल्स डिस्पर्स होती है तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है. इस टाइप के एरर को हम बोलते हैं ISI एरर. अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि इसे हम रिजॉल्व कैसे करें. सो हाउ टू रिजॉल्व दिस टाइप ऑफ एरर. सो नाइक्विस्ट गेव ए क्राइटेरिया फॉर 0 ISI. देखिए ये दूसरा नाइक्विस्ट ने कम्युनिकेशन में 2 क्राइटेरिया दिए थे, एक सैम्पलिंग थ्योरम में और दूसरा ISI के लिए. सो दिस इज डिफरेंट. तो लेट ट्रांसमिट पल्स बिट हम बता रहे हैं PT. तो इफ PT is equal to 1 at t equal to 0 and PT equal to 0 at t equal to NTS where n is not equal to 0. समझ आया, नहीं आया तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसे देखते हैं. Let's assume rectangle pulse is transmitted. Let's assume it is a pulse PT. इसका इक्वेशन है PT, width है TS. Let's assume transmitted pulse मैसेज के लिए होगा. Let's assume A0, A1, A2, A3 are transmitted signal. तो अज्यूम कर रहे हैं हम 1011 को हमारा इनपुट है, इसे हमें ट्रांसमिट करना है. तो ट्रांसमिटेड पल्स कैसा होगा, लेट्स अज्यूम 1 के लिए होगा. ये A1 के लिए हम कोई पल्स यूज नहीं ले रहे. A2 के लिए अगेन रेक्टेंगल पल्स, A3 के लिए अगेन रेक्टेंगल पल्स. तो देखिए ये इसका इक्वेशन होगा PT एट 2TS इंटरवल. इट इज पल्स का इक्वेशन होगा PT माइनस 2TS बिकॉज इट इज ए डिलेड वर्जन. ये होगा PT माइनस 3TS. तो हम जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं XT का. ये क्या है, XT. तो इस पल्स का इक्वेशन हमें लिखना है. इक्वेशन हम इस XT इक्वल टू A0 PT प्लस A1 P T माइनस TS प्लस A2 P T माइनस 2TS एंड सो ऑन. So it can be written as AK summation of AK P T minus K and TS, where K is equal to minus infinite to infinite. This is a transmitted pulse. Now received signal YT होगा.
ट्रांसमिटेड सिग्नल प्लस नॉइस, तो इसमें हम नॉइस वाला पार्ट ऐड कर लेंगे, एंटी वाला पार्ट्स, इट इज ए नॉइस। लेट्स अज्यूम ऑप्टिमम फिल्टर इस नॉइस को एल्यूमिनेट करता है, दिस इज जस्ट और अजम्पशन, तो YT होगा केवल यह सिग्नल। अब देखिए, अब इस सिग्नल को हम पास किससे करेंगे, सैंपल से पास करेंगे, सैंपलर से। तो सैंपलर क्या करेगा, इसे t इक्वल टू NTS पर सैंपल करेगा, तो जो y NTS वाला आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, AN बिट के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हमारा एम है डिजिटल सिग्नल निकालना। तो हमारा एम है y NTS शुड बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, AN के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर t हमने देखिए, यहाँ हमने t पुट किया NTS, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। लेट n इक्वल टू 0 के लिए यहाँ हमने n इक्वल टू k है और यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू k है, ठीक है। तो ये दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, an p0 प्लस ak p NTS माइनस KTS। तो ये ओवरऑल क्या रिजल्ट आना चाहिए, हमें an बिट आने चाहिए इसके लिए। तो ये कब आएगा, जब ये सेकेंड पार्ट 0 हो, बिकॉज दिस इज अनवांटेड बिट्स, ओनली बिट इज डिजायर्ड इज एट t इक्वल टू NTS, दिस इज अनवांटेड सिग्नल, और अनवांटेड सिग्नल को हमें क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। और an निकालने के लिए p0 को क्या लिखना है, हमें 1 लेना है, यही नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, सिंपल है। तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया क्या होगा, p0 1 होना चाहिए और जो बाकी का सिग्नल है वो 0 होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। अब इसे लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका, सेकंड तरीका ये भी हो सकता है, p NTS माइनस KTS इक्वल टू 1 इफ n इक्वल टू k। देखिए n इक्वल टू k होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं p0, और 0 होगा जब n इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू k। दिस इज व्हाट इज दिस इज कॉल्ड नाइक्विस्ट क्राइटेरिया टू अवॉइड ISI, ठीक है। देखिए, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसे समेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ p0 ही 1 आना है, बाकी तो सब 0 आएंगे, तो हम इसे समेशन लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज समेशन ऑफ p NTS माइनस KTS इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम इसे टाइम t भी लिख सकते हैं, तो ये टाइम t डोमेन में नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एक गेट में क्वेश्चन आया था, बट दैट वाज ऑन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो यदि हम इसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म ले तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या आएगा, देखिए ये पल्स ट्रेन है, हम इसे पल्स ट्रेन बोल सकते हैं। तो पल्स ट्रेन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है, पल्स ट्रेन ही आता है, जस्ट 1 अपॉन TB वहां एक एम्पलीट्यूड में आ जाता है। सो ऑल 3 आर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा 1 अपॉन TB समेशन p f माइनस NFS इज इक्वल टू 1। जैसे एक मल्टीप्लाई फैक्टर आता है 1 अपॉन TB, ये गेट का क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे अब आपको इक्वेशन समझ में आ गई। अभी हम देखते हैं कि ये कौन सा पल्स इसे सेटिस्फाई करता है। तो हम पहले हम देखते हैं सिंक पल्स। अभी हमने प्रैक्टिकली अभी हमने यूज लिया था रेक्टेंगल पल्स इन टाइम डोमेन। तो रेक्टेंगल पल्स, अब देखिए रेक्टेंगल पल्स क्या हम यूज लेंगे, हम रेक्टेंगल पल्स कभी प्रैक्टिकली यूज नहीं लेते। व्हाई वी डोंट यूज रेक्टेंगल पल्स, बिकॉज बैंडविड्थ ऑफ रेक्टेंगल पल्स इज इनफाइनाइट थ्योरेटिकली। तो बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना होगा। तो रेक्टेंगल पल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, सिंक पल्स। तो देखिए इसका बैंडविड्थ क्या है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ है थ्योरेटिकली। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। सो वी विल नॉट यूज
rectangle pulse to transmit a digital signal. क्यों यूज नहीं लेंगे? आंसर सिंपल है, बिकॉज इट्स बैंडविड्थ इज इनफाइनाइट, और बैंडविड्थ हम टाइम डोमेन में नहीं देखते, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं. तो इट कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यूज. तो सॉल्यूशन क्या है इसका? आपने ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी पढ़ा है सिग्नल सिस्टम में. यदि हम इन्हें इंटरचेंज कर दें इन वेव्स को तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो सिंक पल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? रेक्टेंगल पल्स ही आएगा. तो वी विल यूज सिंक पल्स. क्यों यूज लेंगे सिंक पल्स? क्योंकि जो ये बैंडविड्थ आएगा ये मिनिमम आएगा. बैंडविड्थ कितना आ रहा है इसका? W. ठीक है. तो अभी हम देख सकते हैं TB इक्वल टू कितना आएगा? 1/2W. तो W इक्वल टू क्या क्या आएगा? 1/2TB. तो ये आएगा RB/2. तो ये होता है मिनिमम बैंडविड्थ का फॉर्मूला. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी एग्जाम. For almost all exam it is important. What is minimum bandwidth? Minimum bandwidth is RB/2. ये आएगा RB/2, और वो उसे कौन देगा? sync pulse ही देगा. So sync pulse is good. So we will use sync pulse in time domain. अब देखते हैं कि इसका फोटो कैसा आएगा, ये किस तरीके से वर्क करेगा, और ये ISI को, ये नाइक्विस्ट क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा. We will see. लेट्स एज्यूम हमें ट्रांसमिट करना है सिग्नल 1. तो सिग्नल 1 के लिए हम ट्रांसमिट करेंगे सिंक पल्स. देखिए ये सब हो रहा है टाइम डोमेन में. दिस इज इंपॉर्टेंट. इट इज हैपनिंग इन टाइम डोमेन. सो वी विल नॉट यूज रेक्टेंगल पल्स. इंस्टेड रेक्टेंगल पल्स वी विल यूज सिंक पल्स. व्हाट इज एडवांटेज? बैंडविड्थ, इट विल गिव मिनिमम बैंडविड्थ RB/2. तो ये हमारा पहला एडवांटेज था. अब सेकेंड एडवांटेज हम देखते हैं, इट इज इट फॉलो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया. सो लेट्स चेक. अब देखिए एट टाइम TS ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है. लेट्स अज्यूम एम्पलीट्यूड है 1. तो P0 क्या आया? 1 आया. और अदर टाइम सैम्पलिंग इंस्टेंट्स पर 2TS पर, 3TS पर, 4TS पर, 5TS पर ये कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. तो यस, इट इज फॉलोइंग नाइक्विस्ट क्राइटेरिया. नाइक्विस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करने का एडवांटेज क्या होगा? नो ISI. तो हम सिंक पल्स का यूज कर सकते हैं. कैसे करते हैं? लेट्स सी. सेकंड सिग्नल इज 1 इन रेड 1. इट इज अदर सिंक पल्स. लेट्स अज्यूम सेकंड नेक्स्ट बिट इज 0. हम अज्यूम करते हैं 0 के लिए हम -1 या रिवर्स्ड सिंक पल्स यूज लें. 4-1 ये सिग्नल आएगा. तो हम ट्रांसमिट क्या कर रहे हैं? 1101. ठीक है. तो आपको CRO पे कुछ ऐसा फोटो दिखेगा. तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फोटो दिख रहा है, बस इट विल वर्क. व्हाई इट इज वर्क? व्हेन वी आर सैम्पलिंग इंस्टेंट एट TS. तो कौन सा सिग्नल आ रहा है? सिर्फ ब्लू कलर का सिग्नल आ रहा है. ठीक है. जब हम सैंपल करते हैं 2TS पर सिर्फ रेड कलर का पल्स आ रहा है. जब हम सैंपल करते हैं 3TS पर तो सिर्फ ब्लैक कलर का पल्स आ रहा है -1 के करस्पॉन्डिंग. और जब 4TS पर हम करते हैं तो येलो कलर का सिंक पल्स आ रहा है, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू 1 बिट. तो देखिए जब भी हम सैंपलिंग करते हैं तो सिर्फ करस्पॉन्डिंग सिंक पल्स ही का ही सैंपलिंग हो रहा है. अदर्स components are 0. So that is called Nyquist criteria. So there is a no interference of other pulses. Remember, there is a no interference of other pulses. That's why it is following Nyquist criteria. अब हम एडवांटेज देखते हैं. सिंक पल्स गिव मिनिमम बैंडविड्थ. What is minimum bandwidth? RB/2.
and it follows Nyquist criteria. These are two advantages of sync pulse, but disadvantages are sync pulse have unnecessary side lobes, which is wastage of transmission power. You know that it is a sync pulse, तो ये तो unnecessary है side lobes. So we are interested only in primary lobe, so these are unnecessary. So these side lobes are just wasting a transmission power. So this is a disadvantage. And second disadvantage is when we change require a change from 1 to 0, it is very slow. So it must be sharp change like rectangle pulse. So this is a disadvantage. तो solution होगा इसका, we will use raise cosine pulse instead of sync pulse. It is a very important for a numerical point of view. Raise cosine filter और raise cosine pulse. तो यहाँ एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस हुआ, that is called alpha is called Roloff factor. This is sync pulse. So for sync pulse, Roloff factor is 0, and let's assume it is side lobes are reduced, and again side lobes are reduced. So these are 3 pulse. So for all 3 pulse, alpha will be different. तो सिंपल सिंक पल्स के लिए अल्फा का वैल्यू होगा 0. इट इज फॉर सिंक पल्स. और दीज आर रेस कोसाइन पल्स. ठीक है. एडवांटेज क्या हुआ, रेस कोसाइन पल्स का साइड लॉब्स का देखिए एरिया कम है, तो पावर वेस्टेज कम होगा. और सेकंड, चेंजेस देखिए शार्प है. तो जब हम 1 से 0 पर जाते हैं तो चेंज शार्प चेंज जाता है. सो दिस इज ए गुड फॉर स्विचिंग. तो गेट के एग्जाम में ये अब देखिए यहाँ पर बैंडविड्थ मिनिमम नहीं रहेगा, कुछ बैंडविड्थ इंक्रीज होगा. किस फैक्टर से इंक्रीज होगा, 1 प्लस अल्फा फैक्टर से इंक्रीज होगा. सो बैंडविड्थ विल बी RB अपॉन 2 1 प्लस अल्फा. अब अल्फा का वैल्यू होगा 0 से लेकर 1. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एग्जामिनेशन. So last question, how it is measured? So in CRO it is measured as I diagram. At a CRO we take signal YT at X terminal, and at Y terminal sawtooth wave is connected. So this type of diagram we will get at CRO. तो देखिए I type बन रहा है कुछ. This is type of I. So it is called I diagram. देखिए जितना ये क्लियर होगा, जितना I क्लियर बनेगा उतना ही ISI मिनिमम रहेगा, उतना ही ISI कम रहेगा. तो जितना I क्लियर रहे उतना अच्छा है. ठीक है. तो by this method we can measure the ISI effect. So in last summary, in baseband or wired communication there is a dispersion of pulse. So interference is called intersymbol interference or ISI. To avoid ISI, Nyquist criteria must follow by any pulse. So sync pulse is good. Sync pulse give minimum transmission bandwidth, but practically we use raise cosine raise cosine pulse. So if you like the video, please subscribe my channel. Thank you.